So good evening, everyone. I'm audible. Mhm. Uh, so what we have done in last class, tell me. Up to what we have done, guys. So today Reflection and you transmission of waves. okay, reflection transmission we have done. Okay, today you guys want to solve some questions of this year JEE Mains 2025. Those topic we have covered. Do you want to solve? Means miscellaneous topic. It can be center of mass, rotation, SHM. What questions 2025 asks? Is it okay? Or you guys tell I should continue the things? It's your choice. Okay, those who want to solve the paper this year, what they ask in JEE means raise their hand. Those who want to solve the papers means up to waves, what we have discussed, and you want to me to miss sir, please show us. We will solve. If majority student want, I will start the previous year means this year paper discussion 2025. If majority will not there, so I will continue the topic. Okay, so we are going to actually see three, six hands, two, and one, two, three, four, five, six, seven, eight. Majority still is not in favor of solving. Okay, one, two, three, four, five, six, seven, 50-50. Okay. So you guys want to continue the topic or this year JEE Mains question what they have asked in the paper? If one more raise hand, we go to the paper. Otherwise, this is 50-50. My choice. One, two, three, four, five. Okay, guys, I got your majority of the student wants me to discuss this year paper. So let us discuss some paper of this year. Then we will, if time allows, then this is the learning class for everyone. Okay, this is the learning class. Let me tell you. Okay, so let us start a discussion of the paper. Okay, which this year only, because previous year paper you have seen already. So this year paper I'm just sharing the screen and the paper will come. Okay, guys, so let us start. Which topic you guys want me to first start? It's your choice. Which topic, guys, tell. Properties of matter. Which topic, tell anyone. So it or it's my choice, tell. So thermodynamics. Thermodynamics, so we have not done. No, actually, this is this year paper we are discussing. So let me ask the question from my choice. So first question I'm asking to everyone, this question. This is a good question of center of mass. They have asked in JEE Mains 28th January morning shift paper. Please read the question and try everyone. Please read the question and try everyone.
Anyone do it? Sir, option B. 2a by 3 and b by 2. Correct. Very good. How you have done? Tell. Sir, for the x coordinate, I did summation mixi by summation mi. See everyone, that is actually, this is the question. Very good. Have you not taken a strip at a distance Yes, sir. Yes, x? sir. Dx Okay, that you have to say that, at sir, distance I x. have taken a strip at a distance x of thickness dx. So, sir, what is the area of this strip? If this is b, this is a, area is b dx. Is it okay? And you have given sigma, uh, sigma naught x by ab. Na? This is dm. Yes or no? To tell me to. This is dm. Na? Yes, sir. This cancel this. Na? So what is the formula of x coordinate of centromas? Integration of x dm upon integration of dm, na guys? So integration of x dm, rho sigma naught x into x divided by a into dx, integrating it from limit where to where? Can you guys tell me? And this is sigma naught x by a dx, limit where to where? 0 to 0 to a. a, 0 to a. Can you guys solve this equation? Can you guys solve, just solve it and tell me? So you can simply say, sir, constant will be cancel out. Rho naught a will take in out and cancel out. X integration is x square integration is x cube by 3, and putting the limit, this will become a cube by 3, and this is x square by 2. Putting the limit, this is a square by 2. So this will be a cube by 3 into 2 by a square. That means 2a by 3. But there is no variation in y direction. So you can simply y dm, integration of dm. Na? So you can simply write integration terms rho naught x by a constant from here, y dm upon integrate y. Sorry, this will becomes dy, na? Because now you'll take a strip like this, and now integration of dy. So this cancels this rho naught x by a. So this becomes y square by 2, putting limit b square by 2. So the answer will be, you guys getting my point what I'm saying? Everyone understood? Yes, Is it sir. okay guys what I'm saying? Huh. Please ask anyone having any doubt. किसी को कुछ confusion है तो बच्चों पूछ लीजिए. If you have any confusion, please ask. Anyone? It is okay. Should I go to the next? बच्चों किसी को कुछ confusion है क्या? No, sir. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. तो हमने सेंटर ऑफ मास का एक अच्छा क्वेश्चन ये है बच्चों. इसमें आपको जब आपका वेरिएबल मास सिस्टम आएगा तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है ना? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से लेते जाता हूँ बच्चों. चलिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए.
Option D, 1 centimeter. 1 centimeter. Everyone done? First of all, let us check the answer. Okay, 1 centimeter is correct or not, anyone? Let us see how we will do this question. तो बच्चों पहले आपको क्वेश्चन में दिया क्या इंफॉर्मेशन, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए इंफॉर्मेशन के रूप में बच्चों. देन यू शुड ट्राई. सर्कुलर डिस्क ऑफ 20 सेंटीमीटर with center located at origin. ठीक है बच्चों, ये 20 सेंटीमीटर का रेडियस है इसका. A circular hole of 5 सेंटीमीटर is cut. अब कैसा डिस्क है बच्चों, कैसा कट किया गया है आपका, ये 5 सेंटीमीटर का ऐसा कुछ कट किया गया है मान लीजिए, ठीक है ना. कैसे कट, इन सच ए वे दैट एज ऑफ होल टचेस द एज ऑफ द डिस्क. ठीक है. डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेसिडुअल फ्रॉम द ओरिजिन. चलिए पहले तो बच्चों बताइए पहले आप, ये नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट है क्या. m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता था ना बच्चों सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला. तो अगर एक मास नेगेटिव हो जाए तो m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 हो जाता है क्या बच्चों, जरा देखिए तो. यही तो हम लोग यूज करने वाले हैं ना बच्चों. तो अब आपका पहले का सेंटर ऑफ मास, अगर मैंने देखा इसका सेंटर ऑफ मास तो बच्चों ओरिजिन पे लाई करेगा मान लीजिए. तो आपने बोला m1. अच्छा, m1 की वैल्यू अभी हम निकालेंगे 0. m2 का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा बच्चों, m2 का सेंटर ऑफ 15. मास कहाँ, कितने पे बोलो वो तो बच्चों बताओ. 15. यहाँ से बच्चों देखिए ये 20 है टोटल, और ये आपका है यहाँ से बच्चों 15 है, तभी तो ये 5 है, रेडियस 5 का. तो m2 इंटू 15 अपॉन m1 माइनस m2 ना बच्चों, यही तो करना है. आप बताइए m1 और m2 में क्या रिलेशन है बच्चों. आप एरिया से रिलेट कर सकते हैं कि पाई इंटू 20 स्क्वायर इंटू सिग्मा. अगर इसको हमने कैपिटल M माना बच्चों, तो सिग्मा पाई इंटू 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, जरा बताओगे क्या. m बाय कितना हो जाएगा बच्चों ये, M/16. m/16 ना. तो अब आपने बोला बच्चों ये तो 0 हो गया, माइनस m/16 इंटू 15 डिवाइडेड बाय m माइनस m/16, m माइनस m/16. तो ये हो गया बच्चों 15 m/16, ऊपर 15 m/16 है. तो 1 हो गया क्या बच्चों, 1 किस तरफ शिफ्ट होगा बताइए तो. लेफ्ट साइड. Towards the left. आपका बच्चों जो है इस तरफ शिफ्ट होगा, -1 का ये मतलब यही है बच्चों, ठीक है ना. तो दैट इज वाई दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों. और अगर मुझे चेक भी करना होगा ये आंसर, तो हाउ आई कैन चेक, लेट मी चेक. मैं बैक जाऊंगा थोड़ा, कंफर्म करूंगा इसको. सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन नंबर 2, न्यू टू ओल्ड स्टार्ट. द आंसर इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, आंसर इज 1 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट मैं थोड़ा सा बच्चों आपको लेके चल रहा हूँ रोटेशन पर, ठीक है ना. रोटेशन में क्योंकि जो जो क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको बेसिक जो पढ़ते हैं वैसे से क्वेश्चन आता है बच्चों. आपने देखा सेंटर ऑफ मास में जो है आपका नेगेटिव मास कंसेप्ट आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है बच्चों इससे. चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों.
Sir, 4. Yes, sir. हाँ सर 4. Sir, you are not audible. आई वाज सेइंग दैट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट बच्चों क्या होता है, डिस्क का mr स्क्वायर बाय 4 और रिंग का बच्चों क्या होता है mr स्क्वायर बाय 2 डायमीटर के अबाउट बच्चों ने। तो आपसे क्या इन्फॉर्मेशन दी थी बताइए तो, क्या इन्फॉर्मेशन दी थी बच्चों? The moment of inertia of solid sphere which has the same radius as that of disk is rotating in similar way is n times the moment of inertia of the ring। तो बच्चों पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था आपने देखा, mr स्क्वायर बाय 2 था रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बच्चों। और अगर डिस्क का मैं बात करूं mr स्क्वायर बाय 4 होता है ना उस mr square एक्सेस by के बाद 4. बच्चों। तो फिर क्या किया आपने बताइए मुझे, आप लोगों ने सॉल्व किया बच्चों बताइए मुझे, आप लोग जहां कंफ्यूज हो गए वहां आई डिस्कस टेल क्या किया बच्चों आपने, क्या क्या Sir, लिखा? m radius of disk square by 4 is equal to 5 by 2 into m radius of ring square by 2. वेरी गुड। So तो from दिस this we get तो हम लोग का कुछ रिलेशन मिल गया क्या बच्चों आपका, किसमें आर और आर में रिलेशन मिल yes गया ना sir. एक आपका। तो आपका आर और आर में रिलेशन जो मिला बच्चों, अच्छा मास आपने क्या सेम लिया है ना सबका बच्चों, क्योंकि देखिए Yes, आपको sir. बोला है सिमिलर वे रोटेट किया गया है इसको, तो मास आपने अलग लिया कि मास सेम लिया बच्चा बताइए तो। Same. लास्ट लाइन पढ़िए, कंसीडर ऑल बॉडी हैव इक्वल मासेस, तो बच्चों सेम मासेस लेना है आपको, ठीक है ना। तो आप बोलेगे बच्चों कि आर की वैल्यू मेरी आर बाय रूट 5 आ गई ना बच्चों, आर की वैल्यू आर बाय रूट 5 आ गई ना। अब आपसे क्या पूछा गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सॉलिड स्फीयर क्या होता है बच्चों, 2/5 mr स्क्वायर डायमीटर के अबाउट यही होता है ना बच्चों, 2 2 by बाई 5 फाइव mr एम आर। तो आपका सेम एज द डिस्क इन द सिमिलर वे, डिस्क का आपका क्या था बच्चों, mr स्क्वायर बाय 4 था ना, mr स्क्वायर बाय 4 था ना बच्चों। तो अब आप बोलेंगे कि सर रिंग के जो अब क्या है डिस्क एंड रोटेटिंग इन द सिमिलर वे इज n टाइम्स दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन रिंग इज इक्वल टू n टाइम्स m r बाय रूट 5 का होल स्क्वायर बाय 2 ना बच्चों। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। सब इस सिंपल सिंपल डेटा बेस्ड क्वेश्चन थे बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे गलती करके आए थे, आप लोग ट्राई करिए तो बच्चों ये क्वेश्चन नेक्स्ट। जल्दी करते हैं बच्चों जल्दी करते हैं, जितना तेज करेंगे कैलकुलेशन उतना आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। चलिए सर 4. 4. 4। Yes, sir. ओके बच्चों, सॉलिड डिस्क है, थिकनेस सेम है, So 16. 16 इज द राइट आंसर बच्चों, इसलिए जो 4 बोल रहे हैं ना
एक बार चेक करेंगे बच्चों 4 तो, एक बार चेक Yes, करेंगे sir. बच्चों 4 तो। 16 इज द राइट आंसर, लेट मी शो यू द आंसर। 4 गलत है बच्चों, 16 इज द राइट आंसर है। मैं बोला ना इसमें क्वेश्चन बच्चे मिस्टेक करके आए हैं और आप लोग भी मिस्टेक कर चुके हो बच्चों। 16 इज द आंसर। देखिए बच्चों, बच्चों ने जो भी टिक किया जो मुझे बताया था उन्होंने, देखिए तो यू एंटर 4, करेक्ट आंसर इज 16। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों, आप लोग मास को भूल जाते हैं कि डेंसिटी इनटू थिंग्स। अब आपको समझ में आई मिस्टेक क्या? देखिए तो सारे बच्चे कि मैं करूं इसको यस सॉल्व। सर, डेंसिटी सेम लेना है। हाँ बच्चों, तो उसके मतलब मास का जो है इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको जो लेना था उसमें एक आर स्क्वायर और आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों 16। ये मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम में बच्चों, मुझे करने की जरूरत तो नहीं है। क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग क्या? आप लोग समझ में आ गया वो मिस्टेक जब मैंने बताए? हाँ सर। चलिए यस सर। तो ऐसे मिस्टेक नहीं करने बच्चों हम लोग एग्जाम में, ये सब चीजें, यही मैं आपको आज का लेक्चर यही सिखाएगा बच्चों कि क्या मिस्टेक्स होता है हड़बड़ी में। आप लोग जो अभी 4 बोले हो ना बच्चों, एग्जाम में ये गलती हो जाती है, ठीक है ना बच्चों? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको टाइम बाद में दूंगा। चलिए मुझे इसका आंसर बताइए। 25। 25 बच्चों, सारे बच्चे का आंसर आ रहा है 25। चलिए बताइए 25 में क्या किया आपने, जल्दी बताइए। सर टाइम दिया हुआ है 12.5 सेकेंड। सो ठीक है। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इक्वल टू 6 और 1/4 तक ऑसिलेशन हो रहा है। तो 6 ऑसिलेशन के लिए 6 एंड 1/4 ऑसिलेशन के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 24 + 1 25 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 सेंटीमीटर। चलिए और कोई तरीका है क्या बच्चों? और कोई तरीका है करने का? सोचिए जरा सा तो, और कोई सिंपलेस्ट वे करने का, सोचने का। इस बच्चे ने सही बोला बच्चों, लेकिन और कोई तरीका है क्या? बच्चे ने बोला सर देखिए, अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, एम्पलीट्यूड 1 है, डी इज टोटल डिस्टेंस एंड स्मॉल डी इज डिस्प्लेसमेंट बच्चों, ठीक है ना? तो आप बताइए कि अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, एम्पलीट्यूड 1 हो, तो 12.5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? जरा बताइए तो, कैसे निकालोगे? क्या लॉजिक क्या होना चाहिए इसके पीछे बच्चों? मैं एसएचएम से लॉजिक पूछ रहा हूँ। तो 0.5 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट। 0.5 सेकेंड पर एक बार इसलिए बच्चे ने बोला ना 12.5 सेकेंड में 25 हो जाएगा, ठीक है ना? यही बोला ना बच्चों? तो देखो, आपने बोला बच्चों कि टाइम पीरियड, जब मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ बच्चों, डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो आप बोलते हैं ऐसे टाइम पीरियड को, देखिए कि सर टाइम टेकन टू कम, आपका एक, मैं कहाँ गया पेज, ये रहा। देखिए बच्चों, आप ये बोलते हो ना, एक सेकंड, रुकिए रुकिए, इसको मैं क्लियर ही कर देता हूँ। एक काम कर, इसको रिमूव
एंड फिर से ले आता है। तो बच्चे देखिए टाइम पीरियड का मतलब है आपका, यानी कि अगर एसएचएम कोई परफॉर्म कर रहा है बच्चों, मान लो कि ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ गया ये, फिर यहाँ से यहाँ आया ये, फिर यहाँ से यहाँ गया ये, और फिर यहाँ से यहाँ आया, तब ये कंप्लीट टाइम पीरियड हुआ क्या? तो बच्चों इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, मतलब इसको यहाँ से यहाँ आने में 0.5 सेकेंड लग रहा है क्या बच्चों? तो 0.5 सेकेंड में ये 1 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लेता है, ठीक है बच्चों। तो 12.5 में कितना करेगा बच्चों? 12.5 में करेगा कितना? तो आप बोलोगे सर 12.5 में इसको करना चाहिए इंटू 1/2, आप मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करोगे 1/2 से बच्चों इसको, तो आपका ये हो जाएगा 25, क्योंकि बच्चों हर 0.5 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों आपका? तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, जब डिस्टेंस आपका 12 जब हो जाता है बच्चों कंप्लीट ना, तो ये आपका मीन पोजीशन पे आ जाएगा ना बच्चों, फिर ये आपका यहाँ से आएगा ना यहाँ तक। तो आपने बोला सर 0.5 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा सर, 1 सेंटीमीटर होगा, तो 25 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों ना, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए था, एकदम क्विकली करना चाहिए था ये क्वेश्चन आप लोग को। चलिए चलिए बच्चों ट्राई करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला ना कि एसएचएम को कहीं से भी लिंक कर सकता है, देखिए फ्लूइड से पहले से भी लिंक किया है, फिर भी लिंक किया आपको बच्चों, ठीक है ना। चलिए चलिए बच्चों बताइए, टाइम ज्यादा ले लिया आपने इस क्वेश्चन में।
चलिए बच्चों देखते हैं, इसमें आप लोगों ने ज़्यादा टाइम ले लिया। पहले इसका लॉजिक समझिए बच्चों, कैसे आपको ये एसएचएम परफॉर्म करेगा बच्चों ये। 2 2 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए बच्चों बताइए, इस बच्चे ने 2 बोला, कैसे सॉल्व किया इसको? सर बैंड अदरवाइज फोर्स तो वी डो जी, सो बैंड फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो के इंटू एक्स 10 न्यूटन होगा, के का वैल्यू 100 होगा और टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, वैसे करके 2 आ रहा है। एम बाई के से किया आपने क्या? देखिए बच्चों, इसको मैं लॉजिकली अगर और से देखूं अच्छे से, तो मतलब मान लीजिए ये आपका एक क्यूब है, ये बच्चों इसके अंदर वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना। अब आपने इसको डाउनवर्ड पुश, अच्छा बच्चों फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो वेट है ना mg, वो बायनेंसी बैलेंस कर रहा है बच्चों। b इज इक्वल टू mg है अभी। आपने जैसे प्रेस किया डाउनवर्ड, बायनेंसी बढ़ गया क्या बच्चों? अच्छा बायनेंसी क्या है? डेंसिटी वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आपने साइड को a ले लिया बच्चों, a स्क्वायर है, और मान लीजिए कि बच्चों कुछ आपका ये लेंथ पानी में सबमर्ज थी, मान लीजिए मैंने बच्चों कितना मान ले मैं, बताइए कितना मान लूं मैं? x मान लेता हूँ इसको, आप कुछ और भी मान सकते हैं, मैंने x मान लिया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया वॉल्यूम, रो भी जी इज इक्वल टू एम इंटू जी ना बच्चों। तो एक इक्वेशन तो मेरी यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन, अब मैंने जब डिप किया तो मेरा रो ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स डैश, मान लिया कि मैंने एक्स डैश नीचे गया बच्चों, ठीक है ना, इंटू जी माइनस एम जी इज इक्वल टू, यही तो बच्चों आपका नेट फोर्स लगेगा ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे सर ये रो ए स्क्वायर एक्स जी से एम जी तो कट गया सर, तो बचेगा क्या बच्चों? रो ए स्क्वायर एक्स डैश जी इज इक्वल टू, ये मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। ये मास किसका मास लिखूं बच्चों में? ये मास किसका मास लिखूं? ये तो वॉल्यूम सबमर्ज था बच्चों, ये मास किसका मास लिखूं बोलिए तो? चलिए मैंने मास, ये जो है आपका मास ऑफ द क्यूब ब्लॉक। का ब्लॉक का मास m 10 ग्राम लिख दिया बच्चों, इसको मैंने एक्सिलरेशन डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻³ कर दिया बच्चों, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से अगर मैं देखूं, तो ये जो टर्म है बच्चों, ये टर्म किसके इक्वल है? देखो तो ये टर्म क्या देता है बच्चों आपको? ओमेगा स्क्वायर है ये टर्म, क्या देखिए ओमेगा तो। स्क्वायर। तो ये बच्चों अगर ओमेगा स्क्वायर टर्म है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? रो 100। ए स्क्वायर एक्स, सॉरी जी डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻³ अंडर रूट ना बच्चों। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा होता है ना बच्चों। 2 पाई बाय टी में लिखूं इसको क्या? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मास 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मैं 1000 बोल देता हूँ डेंसिटी को बच्चों, दिया भी हुआ है 1000, इंटू ए स्क्वायर, लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है तो 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी लोगे बच्चों आप? 9.8 लेना चाहिए, बट हम 10 यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो 10 लेंगे बच्चों, ठीक है ना। देखो क्या क्या कट जाएगा बच्चों, 10⁻⁻4 इंटू 10 करोगे, ये इससे पूरा पूरा कट गया बच्चों ये वाला टर्म। अब देखिए इससे ये कट गया बच्चों आपका, ठीक है। तो 2 पाई बाय, एक सेकेंड, ये 10 है ना, ये 10 है यहाँ पर, तो एक 10 बचा ना, 2 पाई बाय 100 हो गया क्या बच्चों? 2 पाई बाय ये 100 हो गया क्या टाइम पीरियड? तो अब आपको क्या पूछा गया? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस किसके टर्म्स में पूछा गया बच्चों? y पाई इंटू 10⁻², दिस इज नथिंग बट y पाई बाय 100 ना बच्चों, इससे ये कट गया, पाई से पाई कट गया बच्चों, y इज इक्वल टू 2 नहीं है बच्चों। दिस इज योर आंसर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक Yes. बार। तो मुझे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन b इक्वल टू mg करेंगे, फिर मैं b को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चों जब आपने डिप किया तो b बढ़ गया, mg घट गया, क्योंकि बच्चों नेट जो वॉल्यूम था इनसाइड वो बढ़ गया ना, तो वो अब आपका बायनेंसी डोमिनेट हो जाएगा mg से, एंड यू विल से कि व्हेन बायनेंसी डोमिनेटिंग mg, तो दिस विल परफॉर्म ऑसिलेशंस अबाउट मीन पोजीशन। चलिए
अच्छा, अब एसएचएम को थोड़ा सा अभी यहीं पे विराम देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अब मैं बच्चों थोड़ा सा कुछ ऐसा टॉपिक जो सारे बच्चे कर पाए बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं इसमें। चलिए तो हम लोग देखते हैं वर्क एनर्जी, सबसे आसान चैप्टर बच्चों, और सबसे आसान क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड होते हैं। तो मैं बोलूंगा पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एसएसएन रीजन है बच्चों। अच्छा, आप लोग का क्लोज ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप हो गया था ना बच्चों? यस यस सर। ओके, एंड करेक्शन नहीं करवाया होगा उसमें ना? नहीं सर, वो भी हो एंड गया था। एंड करेक्शन भी हो गया था ना बच्चों? कि मैंने बोला था कि एक्चुअल लेंथ जो है मतलब डायमीटर का 0.3 टाइम्स ऑफ दिस। ओके, कर लिया था हम लोग शायद। और स्टैंडिंग वेव भी हमने स्टार्ट कर दिया था बच्चों। स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन था वो सब हमने कर चुके थे ना। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं बच्चों यस वेव्स में। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स भी स्टार्ट करेंगे अभी, लेकिन एक दो टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे बीट है बच्चों आपका, एक आपका क्विंक एपरेटस है, सीबैक एपरेटस है, कुंट्स ट्यूब है, ये सब छोटे छोटे हैं बच्चों। सोनोमीटर है। ये एक क्लास में सारे हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। ये छोटा टॉपिक है। तो पहले मैं आज के पेपर का डिस्कशन से आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा बच्चों ना, कि मेंस का जो पेपर है उस लेवल का तो मतलब नहीं आता कि आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। एडवांस का भी ऐसे हम लोग एक दिन डिस्कस करेंगे बच्चों। जब एडवांस का पेपर आएगा ना, तो जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उस पेपर को डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना, ऐसे ही। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करते जाइए बच्चों, एवरीथिंग विल बी इजी। सर ऑप्शन बी होगा क्या? बी फॉर बॉम्बे। हाँ सर। चलिए, और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहेगा क्या? देखिए बच्चों, ये तो बात सही है कि सेंट्रल फोर्स जो होता है ना बच्चों आपका, उसमें वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंडेंट, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है बच्चों। दैट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ चूजन। एवरी फोर्स एनकाउंटर इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। यस बच्चों, ये बात भी सही है। पोटेंशियल एनर्जी से सिर्फ वही फोर्स एसोसिएटेड होता है जो बच्चों आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएटेड नहीं है। तो असर्शन रीजन दोनों तो ट्रू है बच्चों, बट करेक्ट एक्सप्रेशन है क्या बच्चों? नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ए इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है ना। सॉरी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अच्छा, रीजन पूरा फॉल्स नहीं है बच्चों। एवरी हैज नॉट, ये रीजन भी करेक्ट है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों इसका। एक मिनट रुकिए। तो फर्स्ट का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों हम लोग। कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको चेक करना चाहिए बच्चों। एसोसिएशन रीजन का ये पॉइंट देख लेते हैं। तो बी चेक कर लेते हैं बच्चों करेक्ट है कि नहीं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। वर्क एनर्जी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, वो रीजन एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ बच्चों, रीजन ये है, देखिए, एवरी फोर्स एनकाउंटर इन मैकेनिक्स। अच्छा, मैकेनिक्स में तो फ्रिक्शन भी है बच्चों, फोर्स ना एक, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव हैज नॉट एसोसिएटेड विद पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो एवरी राइट फोर्स सर। एनकाउंटर इन मैकेनिक्स डू नॉट
have associated with potential energy, that is true, because friction है बच्चों, viscous force है, ये सब आपका non conservative force है, and these are not associated with potential energy. Is it clear? Yes. चलिए बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा मैं, बट आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा यूनिक दिख रहा है क्वेश्चन बच्चों, बट है नहीं। अच्छा, किसी बच्चे ने पहले पेपर देखा था ये वाला क्या? सायंतिका आपने देखा था क्या? सायंतिका आप ही आंसर कर रहे हो ना बहुत तेजी से, अच्छे से? नहीं सर, मैं अ- सुन रही अच्छा, आपने नहीं देखा था, चलिए बहुत अच्छा। मैं ये बोलूंगा बच्चों, जो बच्चे बिना देखे पेपर को अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं ना, दे आर रियली प्रैक्टिसिंग गुड एट होम, ठीक है ना बच्चों? और यही तो हम लोग को करना है बच्चों, प्रैक्टिस घर पे ज्यादा से ज्यादा करनी है, सो दैट कि हम लोग एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मैंने आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, आपने क्या स्टार्ट किया है? हमसे कुछ स्टार्ट नहीं किया, जो प्रीवियस इस साल जो जेई में पेपर पूछे गए हैं ना, वही यस। डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने सेंटर ऑफ मास डिस्कस किया है, रोटेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया, एसएचएम डिस्कस किया, वर्क एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, सो ठीक है ना? ओके सर। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को ही डिस्कस, मतलब इस ईयर के, प्रीवियस ईयर नहीं बोलूंगा बच्चों, दिस ईयर के पेपर सब 25 में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना? चलिए ट्राई करिए अंशु ये क्वेश्चन जल्दी। अंशु सर, कुड लेट यू क्यों शो द हुई? ऑप्शंस वन? ऑप्शन बच्चों आपको देख सकते हो, ये ऑप्शन से गेस करते हो क्या बच्चों आप लोग? जैसे मैंने ऑप्शन नहीं दिखाया था, ऑप्शन दिखाऊंगा तो आप बिना सॉल्व किए गेस कर सकते हो बच्चों, आसान क्वेश्चन है, मैंने बोला ना, जब ठीक है ऑप्शन सर। नहीं रहेगा तब आपके पास ये क्वेश्चन टफ होंगे बच्चों, ऑप्शन रहने से ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा बच्चों। रूट ओवर 4 GR प्लस KR स्क्वायर। 4 KR प्लस KR स्क्वायर, तो आप बोलना चाह रहे हो कि नहीं, आपका तो कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। देखिए तो कौन सा बोलना चाह रहे हो ऑप्शन आप? ठीक है सर, और एक बार चेक कर लीजिए। हाँ एक बार ट्राई करिए बच्चों, ट्राई करिए, आ जाएगा आ जाएगा, बस आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे ना, आंसर तो आना ही आना है। कहाँ जाएगा आंसर? फिर वो क्वेश्चन एक बार दिखाइए। क्वेश्चन ये है बच्चों, सॉरी, हाँ मैंने ऑप्शंस के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ दिया दिखाऊं। बच्चों सिंपल सा मैंने आपको बताया था, एनर्जी कंजर्वेशन, जब सब कुछ फेल हो जाए बच्चों तो एनर्जी कंजर्वेशन याद करिए। सर आई थिंक ऑप्शन सी। सी? हाँ सर एक बार दिखाइए ऑप्शन। यस। ओके, अभी भी सोच लो, सी हो सकता है गलत हो। नो सर ए होगा। ए होगा पक्का?
चलिए जो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। अ बीड ऑफ मास m without friction on a wall, a vertical circular loop of radius r, ठीक है बच्चों। अब the bead under the combined action of gravity and massless spring k attached to the bottom of the loop hoop, the equilibrium length of the spring is r, equilibrium length सर r और है एक बच्चों, बार ठीक ऑप्शन दिखाइए ना। है। हाँ सर तो ऑप्शन ये बी होगा। बी। डी फॉर दिल्ली ना। नहीं सर, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। अच्छा बी फॉर बॉम्बे, 3 rg अपॉन दिस। चलिए बच्चों अब आप लोग को मैं राइट आंसर दिखा देता हूँ, देखिए फिर मैं डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन में बच्चों। वर्क एनर्जी में आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों, वर्क एनर्जी में कंफ्यूज मत होना बच्चों। देखिए आंसर आपने बोला बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, और एक बच्चे डी भी बोल रहे थे ना बच्चों, ए भी बोल रहे थे ना आप लोग। चलिए एक बच्चे ने बोला था मुझे बी साइंस का, आपने बोला क्या? आपका नाम क्या है आप बताओ मुझे। सर सोमदत्ता। अच्छा सोमदत्ता, सॉरी सोमदत्ता, आप पेपर पहले देख चुके थे क्या? नहीं सर। चलिए वेरी गुड समझता सोम, आप कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। आपके टेस्ट में मार्क्स भी मैं देखूंगा, अभी टेस्ट जब होंगे तो आपको, तो आप अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से। 2-4 बच्चे और भी अच्छे हैं जो बोलते नहीं है, मुझे पता है क्लास में, बट दे डू ऑल द क्वेश्चन थिंग्स। तो बच्चों समझता आप बताइए कि क्या किया आपने। सर इनिशियल एनर्जी था mgh, h के जगह पे 2r ले लिया, तो ठीक है mg इंटू 2r प्लस हाफ के x के जगह पे r, हाफ के r स्क्वायर ठीक है। इज इक्वल टू फाइनल हो गया हाफ एम वी स्क्वायर मतलब प्लस। आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहे हो ना, हाफ एम बी हाँ सर। स्क्वायर, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल वर्क डन एक आपका स्प्रिंग फोर्स हाफ के आर स्क्वायर और प्लस एम जी टू आर, वेरी गुड। आगे प्लस एम जी आर बाई 2। प्लस एम जी आर बाई 2, ये आपने एम जी आर बाई 2 क्या लिखा? सर r बाई 2 फाइनल हाइट हो रहा है, ओके क्योंकि तो आपने, स्प्रिंग का लेंथ r हो रहा है, तो वहां से हाँ कैलकुलेट करके हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल आ रहा है r बाई 2। तो आप सही बोल रहे हो, बट एक चीज मुझे बताओ कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम को डायरेक्टली भी तो लिख सकते थे ना, आपने किया वही हाँ है। सर, चेंज इन तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, हाँ सर। हाँ तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये बच्चों वर्क डन की ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन होगा ना बच्चों आपका, तो यस कितना वर्क डन होगा ग्रेविटी के द्वारा, ऐसे बताइए तो आप मुझे। ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन जो आप उधर एम जी आर बाई 2 लिख रहे हो, क्या लिखना चाहिए आपको डायरेक्टली? बताइए बताइए। हाँ सर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी टू आर माइनस एम जी आर बाई 2, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्लस हाफ हाफ के आर के, स्क्वायर। बस एक लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। सर एनर्जी कंजर्वेशन से लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एम जी आर। वेरी गुड, एनर्जी कंजर्वेशन से लिखिए, चाहे आप देखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो अदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं, दोनों से सही है बच्चों, ठीक है ना। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है ना। चलिए अब आपको सबको सिंपल क्वेश्चन देता हूँ बच्चों। अच्छा ये तो आंसर किया, अच्छा सॉरी इसमें तो आपका ये, देखिए बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं बच्चों, मैं वो आपको वो दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में बच्चों ने गलती किया, चलिए आप बताइए तो इसमें आप गलती मत करना, चलिए।
15 जूल 15 जूल इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक। 15 जूल इज द राइट आंसर बच्चों। ऐसे हमने क्वेश्चन किए थे ना बच्चों यस कि सर। आपका वॉल्यूम हमने देखा था, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, याद है आप लोग को क्या बच्चों? हाँ सर। भूल गए बच्चों? क्लास में कराया ये क्वेश्चन इस समय बच्चों। हाँ सर। चलिए ये आसान क्वेश्चन करिए तो बच्चों। ये क्वेश्चन मुझे पूछना नहीं चाहिए बच्चों, बट ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए। सर ऑप्शन सी। 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना बच्चों? 12। यस 12 ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल क्वेश्चन था ना बच्चों। आपको सिंपली वर्क डन 501 ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो बीटा की वैल्यू बतानी है बच्चों। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि मैं करूं बच्चों? चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चुनते हैं बच्चों, ये अब बहुत हो गया। अच्छा ये तो बच्चों देखते हैं आप कैंसिल कर सकते हो, जल्दी आंसर बताओ बच्चों बिना पेन पेपर के। So option C. सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना? सी द राइट आंसर, क्योंकि बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ u cos थीटा होती है। u/2 उसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों u/4 हो जाएगा। सिंपल है बच्चों, देखिए क्वेश्चन आपको बहुत आसान सब आते हैं, आपको बस पेशेंटली सॉल्व करना है। चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा वेव्स बच्चों। वेव्स में बहुत सारा हम लोगों ने डिस्कस किया, देखते हैं वेव्स में क्या क्वेश्चन आए हैं। कुछ ऑर्गन पाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑर्गन पाइप कर लिया ना बच्चों। चलिए हाँ पहला सर। क्वेश्चन देखिए तो, पहला क्वेश्चन देखिए तो बच्चों। अच्छा एक सेकेंड रुकिए, इसका मैं डायरेक्ट आंसर भी आपको चेक ही करवाता जाऊंगा। वेव्स स्टार्ट फ्रॉम 1। चलिए बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। आजकल बच्चों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े A is पूछे जा true रहे but हैं। R is false. A is true, R is false। अच्छा सॉलिड में बच्चों बल्क मॉडुलस होता है क्या? नो सर। सॉलिड में तो बच्चों बल्क मॉडुलस की बात नहीं की जा सकती है ना। चलिए बच्चों ये तो मैंने, अच्छा ये इसमें ये हुए हैं सब आंसर क्या। अच्छे रुको बच्चों, एक मिनट के, एक मिनट के, सारे पेपर मैंने देख ही लिए लग रहा है ऐसा ना। कोई कोई बैच में करा ही देता हूँ बच्चों, तो इसलिए अच्छा हाँ A01 में करवाया तो था। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करिएगा तो बच्चों आप, इसमें गलती होती है, सिंपल सिली मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं, जरा बताइए तो। -30
अब बच्चों सिर्फ 30 जिस बच्चे ने किया होगा ना वो गलती हो गई होगी बच्चों, क्योंकि आपने यस सर देखा मैंने कि ये माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है बच्चों, तो -30 इज द राइट आंसर। चलिए +30 मत कर देना गलती से बच्चों। चलिए दिस इज गुड क्वेश्चन अगेन। इस क्वेश्चन को आप Sir, I पेशेंटली सॉल्व think करें। we had done these questions. तो ये हो गया। यस सर, ये लास्ट अच्छा क्लास ये हो गया क्वेश्चन हम लोगों ने कब किया था बच्चों? सर सर। आप लास्ट जब last क्लास पढ़ा रहे थे प्रैक्टिस ना कर रहे ये थे। सब टॉपिक्स। हाँ सर। अच्छा ये कर लिया था बच्चों हम लोगों ने। ये क्वेश्चन मुझे पता था क्या, पता नहीं। चलिए बच्चों ये देखिए, तो ये क्वेश्चन ये तो कर चुके थे क्या हम लोग ये बच्चों? यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे बच्चों आई थिंक। ओके चलिए वेव्स को यहीं पे छोड़ते हैं बच्चों, और अब हम लोग पकड़ते हैं सबसे इजी टॉपिक बच्चों जो आपको प्लेन है। ये सब स्टार्टिंग के टॉपिक इजी होते हैं बच्चों, बस कुछ क्वेश्चन इसमें भी कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन ट्राई फास्ट। अब ये सब क्वेश्चन तुरंत तुरंत होने चाहिए बच्चों, गलती भी नहीं होनी चाहिए। ये आसान क्वेश्चन बच्चों, इसमें इतना टाइम आप ऑप्शन लोग क्यों ले रहे सी। हो बच्चों? ये सिंपल क्वेश्चन था ना। देखिए आपको पोजीशन वेक्टर दी हुई थी बच्चों, आपको वेलोसिटी वेक्टर क्या डिफरेंशिएट करोगे तो tan t i कैप -5 होगा ना बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये tan t i कैप -5 जब 2 पुट करोगे सर तो 20 i कैप -5 होगा बच्चों। तो 20 i कैप और 5 j कैप है बच्चों आपका। तो आप बोलोगे सर 20 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यानी 425 होगा ना बच्चों। सर 425 ऑप्शन का ए। रूट क्या? ऑप्शन ए बच्चों क्या? चलिए बोलिए क्या आंसर होगा इसका? आप समझ रहे थे क्या बोल रहे थे? आप सी बोल रहे थे क्या? नहीं सर सी नहीं होगा, ए होगा। आप सही बोला आपने, ठीक है ना। चलिए तो मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ बच्चों। देखिए ये ऑलरेडी किया है बच्चों ने, इसमें सही तो किया था ना। ए इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। सिंपल तो है ना आपका। ये आपका मैग्नीट्यूड निकालना है मॉड दिस, और लास्ट में आपको tan थीटा निकालना है। तो आपका 5/20 हो जाए, 20/5 हो जाएगा y बाय, अच्छा 5/20 अगर करोगे तो x एक्सिस के साथ बच्चों, और 20/5 करोगे तो y एक्सिस। समझ रहे हो बच्चों? तो आप साइन को भी ध्यान से देखना बच्चों। अच्छा इसमें आपने गलती कर दी क्या, प्लस x एक्सिस के साथ tan 1/5 हो दी? हाँ ये ना सर। समझता, यही गलती हुई ना। हाँ ये गलती होती है बच्चों। देखो y एक्सिस है कि x एक्सिस है, ध्यान से देखना। यही सब क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन जब हो ना बच्चों, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि इतना जल्दी आपको आंसर नहीं करना है, थोड़ा सोच लेना है कि कहीं गलती तो नहीं हो सकती है। चलिए ये क्वेश्चन तो बच्चों मैंने करवाया था क्लास में, देखिए फिर से आया यही क्वेश्चन, याद करिए। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है बच्चों, याद करिए। तो इसीलिए बोलता हूँ बच्चों, आप लोग क्लास को सीरियसली लोगे ना तो मेंस का पेपर तो आपको ऐसे दिख जाएगा बच्चों। एडवांस के लिए थोड़ी सी आपकी एफर्ट होनी चाहिए बच्चों। बाकी थ्योरेटिकली तो हम लोग कहीं भी कुछ नहीं छोड़ते बच्चों, और एडवांस के लिए हम लोग बाद में
वो भी करते हैं बच्चों। एक जिन बच्चों का मेंस में रैंक अच्छा आ जाता है उसके लिए एडवांस के लिए सेपरेट क्लासेस भी होती है, बट उसके बेसिस पे आप मत सोचो। आपको ये सोचना है बच्चों कि एडवांस के लिए अपने आप को हर दिन तैयार करना है, कि मतलब आपने आज क्या नया सीखा जिससे आपके एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपने आज क्या नया सीखा कि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसा हर दिन आपको सोचते रहना है बच्चों। तो वन डे यू विल फाइंड दैट कि एडवांस भी आपके लिए आसान हो गया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों। तो बच्चों ये आसान क्वेश्चन है, जल्दी करिए। मैक्सिमम हाइट पे पूछा गया आपसे। सर ऑप्शन बी। बी बच्चों, ठीक है सारे। चलिए बच्चों देख लेते हैं हम लोग राइट आंसर बी है कि नहीं। तो आई थिंक डी इज द राइट आंसर आंसर, ठीक है ना। एक बार फिर से करिए, मुझे शक हो रहा था इसके आंसर पे इसलिए मैंने चेक किया। चलिए बच्चों एक बार फिर से करिए आंसर। ये आपके नोट्स में भी लिखा होगा बच्चों, एम भी नॉट क्यूब बाय 4√2 जी। सारे बच्चे नोट्स में एक बार उल्टा के देख लीजिए तो। ये सही है, मैं थोड़ा सी मिस्टेक हो गया। ओके बच्चों 4। अच्छा इसमें एक स्टूडेंट ने मेरे क्या किया था बच्चों, नेगेटिव मैग्नीट्यूड तो जेड सही वैसे निकाली, कैसे हो रहा है डायरेक्शन इसको आपका। बता दीजिए। इसको एक बार एक्सप्लेन करूं क्या। हाँ सर, वो डायरेक्शन वाला कैसे नेगेटिव सेट हो रहा है। हाँ नेगेटिव जेड कैसे हो रहा है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए सर देखिए। हाइट को हम अपवर्ड्स पकड़ रहे हैं। देखिए बच्चों, ये जो है आपका, प्रोजेक्टाइल ऐसा है ना बच्चों, ये बच्चों ऐसा है ना। आपको क्या चाहिए बच्चों एंगुलर मोमेंटम के लिए, आर क्रॉस पी चाहिए ना। दिस इज आर वेक्टर। समझता देखिए तो आर वेक्टर ये है क्या, हाँ सर। और पी वेक्टर ये है क्या बच्चों। तो आप अपने पाम को आर की तरफ रखिए और कर्ल कीजिए तो पी की तरफ हाँ सर देखिए तो ठीक है थंब सर। किधर, थंब इज नेगेटिव गोइंग जेड आ इनटू द रहा है। प्लेन। ओके क्लॉकवाइज हो रहा है ना बच्चों। क्लॉकवाइज मींस इनटू द, देखिए आप यहाँ से इधर घूमिएगा क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, नहीं पूछूंगा ये आपसे। अब सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एक सेकेंड।
चलिए बताइए इसका आंसर बच्चों। ये इससे आसान क्वेश्चन क्या ही पूछ सकते हैं बच्चों, देखिए आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पूछे। सर 20 मीटर। 20। 2000 सर हाँ हाँ, सेंटीमीटर में 2000। बोले बच्चों क्या आंसर है आप लोग के पास, सबका 20 है? सर 2000 2000 सेंटीमीटर में 2000। हाँ बच्चों यही देखिए यहाँ पे मिस्टेक होता है, आपने 20 बोल दिया, आपने यूनिट देखी नहीं बच्चों, तो यूनिट देखना है आंसर, ठीक है ना। यस सर। तो ये सब मिस्टेक्स बच्चे करके आते हैं बच्चों, आप लोग समझ पा रहे हो कैसे मिस्टेक्स होता है बच्चों, ठीक है ना। दैट इज 2000 इज द राइट आंसर। देखिए 20 लिखने से सब करने के बाद भी गलती हो जाता है आंसर। और ये यस क्वेश्चन सर। एक बार देखिए तो बच्चों, एक सेकंड बच्चों, FTR ही लिखा जाए। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, चलिए ये क्वेश्चन देखिए अच्छे से सारे बच्चे।
चलो बच्चों इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से। इतना टाइम सर क्यों लग रहा है बच्चों स्क्रीन इसको? Sir, the screen is not visible. ओ सॉरी, एक्चुअली नॉट इज विजिबल, तो आप लोग बोलिए बच्चों ना, स्क्रीन नहीं विजिबल था। अभी स्क्रीन आ रहा है क्या? ना सर, चलिए बच्चों बताइए तो। No, sir. अभी भी स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? ना सर। कौन सा? नहीं sir. ओ, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अच्छा, आप लोगों को बोलना चाहिए ना बच्चों स्क्रीन नहीं आ रहा सर। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को इतना टाइम प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन में क्यों लग रहा है। चलिए बच्चों देखिए, नाउ इट इज कमिंग। यस सर। चलिए बच्चों अब ट्राई करिए तो। सर बी। बी एवरीवन। यस सर। ओके बच्चों चलिए बताइए कैसे किया आप लोगों ने। बी इज राइट आंसर, बट हाउ यू हैव डन। अच्छा बी नहीं, डी राइट आंसर। वन प्लस नीचे और वन माइनस ऊपर बच्चों, ठीक है। डी इज राइट आंसर, वन माइनस वन प्लस ऊपर। कैसे बच्चों? सर वो होगा, यू तो सेम है तो साइन 2 थीटा। अच्छा दोनों का रेंज सेम होगा क्या बच्चों? रेंज सेम होगा दोनों का क्या, देखिए तो। दोनों का सम 90 डिग्री है ना बच्चों। यस सर, रेंज सेम होगा। तो रेंज सेम होगा इसका। अब क्या करेंगे इसके बाद बताइए। मैक्सिमम हाइट कैसे लिखते हैं बच्चों, आप लोग जरा देखिए तो। यू उसका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट अटेन। तो आप बोलेंगे बच्चों यू स्क्वायर विच इज सेम, 2g नीचे का सेम, साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा, और साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा ना बच्चों। यस। तो साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा, साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा। तो आप बच्चों इस दोनों को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप पहले इसको थोड़ा लिख लीजिए। साइन 45 माइनस अल्फा अपॉन साइन 45 प्लस अल्फा, और स्क्वायर को बाहर कर लो बच्चों। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी ना। कंपोनेंट और डिविडेंड को यूज करके नहीं आ रहा है क्या बच्चों? देखिए करके करके देखिए जो मैं बोल रहा हूँ। इफ नॉट मैं सॉल्व करूं आपको बच्चों, जल्दी देखिए तो। नहीं होगा तो आई विल सॉल्व। नो सर, हो गया। हो गया। यस सर। तो जो ये सब आसान क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ नहीं है बच्चों ये, इसमें आप गलती नहीं करो। देखो अच्छा ये तो अब लास्ट ईयर का आ गया क्या? नहीं 24 का आ गया, ठीक। अब देखिए सर्कुलर मोशन से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे।
चलिए पहला क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का देखिए तो बच्चों देखिए हम लोग ने 2 घंटे की क्लास में कम से कम 15 से क्वेश्चन तो 10 से 15 क्वेश्चन तो देखे होंगे बच्चों। तो इस तरीके से आपको हर अगर अपने आप को आप मतलब बच्चों 2 घंटे का टाइम देते हो और कंफर्टेबली बैठते हो तो मैं तो बच्चों पूरे क्लास को लेके चल रहा हूँ। आप जो बच्चे कुछ क्विक हैं तो 2 घंटे में बच्चों कम से कम 40 क्वेश्चन दे कैन इजीली डू इट। 40 to 50 क्वेश्चन इतना 2 घंटे में हो जाएगा बच्चों, अच्छे से अगर बैठोगे कंफर्टेबली तो। चलिए बच्चों जरा ट्राई करिए तो इस क्वेश्चन को। So 36. Sir, you are not audible. Okay, anyone else? 36 may be the right answer or anyone आपका कुछ और लगा रहा है क्या? टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं बच्चों? ये कौन सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है? जरा देखिए तो डायग्राम देखिए अच्छे से बच्चों। तो आपने इक्वेशन क्या लिखा समझा था बताइए। Sir, m mg omega square. हाँ First, I found out the value of omega. T हाँ equal to pi by t time period equal to pi by 3. So omega equal to 2 pi by t equal to 6. और यहाँ पे अगर NLM से m omega square r equal to t sin theta and r equal to l sin theta. So t equal to m omega square l. So omega square equal to 36. आई थिंक यू हैव डन द कैलकुलेशन करेक्ट। अब इसमें 36 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहो बच्चों आप कि आपका देखिए mg नीचे की ओर लग रहा है ना, उससे आपको मतलब नहीं है। आपका सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है बच्चों टेंशन का, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है टेंशन को, एक टुवर्ड द सेंटर एक अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों, वो एंगल अगर थीटा तो ये एंगल थीटा, तो एक कंपोनेंट टेंशन के कॉस थीटा को बैलेंस करेगा, एक कंपोनेंट टेंशन के साइन थीटा को बैलेंस करे प्रोवाइड करेगा बच्चों।
टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना? मैं लिखूं क्या बच्चों? कर लोगे क्या आप लोग? देखो तो मैं करता हूं। कोई और बच्चे ने किया क्या क्वेश्चन? यस सर। क्या किया आपने बच्चों? सर हम लोग ओमेगा ओमेगा इक्वल टू 6 आ रहा है, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा इक्वल टू टी साइन थीटा, तो टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36 ml। चलिए बच्चों, बिल्कुल सही बोला। आपको यही क्वेश्चन बच्चों एससी वर्मा में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको। तो कुछ क्वेश्चन बच्चों एससी वर्मा के डायरेक्ट पूछे गए। एक क्वेश्चन बच्चों आपको फ्रिक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एससी वर्मा का। तो एससी वर्मा को आपको बच्चों अच्छे से सॉल्व करना ही चाहिए मेंस के लिए भी बच्चों, ठीक है ना? चलिए ये क्वेश्चन मैं करूं कि आगे बढ़ूं बच्चों? कर सर हो पाओगे ना गया। ये सब कुछ? हाँ चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये बस इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं बच्चों, एससी वर्मा का डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखिए। तो बच्चों जैसे आप लोग को देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था दो दो, मान लीजिए हम लोगों ने दो दो ही क्वेश्चन किए बच्चों। एसएचएम हमने टच कर लिया, रोटेशन टच कर लिया, सेंटर ऑफ मास टच कर लिया, वर्क एनर्जी टच कर लिया, सर्कुलर मोशन टच कर लिया, वेव्स भी थोड़ा सा देख ही लिया बच्चों हमने। और सर्कुल तो ये बच्चों हमने 5-6 टॉपिक देख लिए, 6-7 टॉपिक मान लीजिए ऐसे। और कुछ टॉपिक है तो 3-4 क्वेश्चन भी कर लिए। तो हम लोगों ने बच्चों कम से कम 15 to 20 क्वेश्चन कर लिए इतनी जल्दी। तो इसका ये मतलब है बच्चों कि आप लोग अगर पेशेंटली हर 10 दिन में भी बैठते हो ना बच्चों, तो प्रीवियस ईयर पेपर करते 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 आपको 5 मंथ्स में ऑलमोस्ट सारे पेपर हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के बच्चों, ठीक है ना? हर 5 दिन में बैठ गए बच्चों, 25 क्वेश्चन कर लिया। हर 5 दिन में बैठ गए, 25 क्वेश्चन कर लिया। तो अगर आप 5 दिन में बैठ के 25 क्वेश्चन कर पा रहे हो बच्चों, तो 150-160 क्वेश्चन तो आपके 5 मंथ में हो जाते हैं, सॉरी 1 मंथ में हो जाते हैं। 800-900 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो पूरा पेपर ही कवर हो गया बच्चों, प्रीवियस पेपर। अब मैं ये नहीं बोल रहा बच्चों आपने सेम टाइप का क्वेश्चन को करते जाना है। अगर एक टाइप का क्वेश्चन को मिला, स्किप कर दीजिए उसको आप। क्योंकि बच्चों आप जब 500-600 क्वेश्चन कर लोगे ना, चीजें रिपीट होने लगेगी, कॉन्सेप्ट रिपीट होने लगेंगे। रिपीटेड कॉन्सेप्ट को आप यूज मत करिए, ठीक है बच्चों? चलिए 1 मिनट बच्चों।
चलिए बच्चों बताइए क्या आंसर है। ऑप्शन सी। सी और जी प्लस बी नॉट स्क्वायर। चलिए ओके, सी इज द राइट आंसर। ये बच्चों एससी वर्मा का डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। लास्ट टॉपिक बच्चों मैं ले लेता हूँ थोड़ा, एनएलएम। एनएलएम से वैसे क्वेश्चन तो कम आए बच्चों, बट हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ऑलमोस्ट हम लोग ने सारा टॉपिक लगभग टच कर दिया फ्रिक्शन को छोड़ के अभी तक। तो ये आसान क्वेश्चन है बच्चों, जरा देखिए तो। व्हाट द आंसर? चलिए बच्चों बताइए, तो आसान क्वेश्चन है। सर ऑप्शन बी। बी फॉर बॉम्बे यस सर। और डी। अच्छा, करेक्ट। ओके बच्चों,
तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों। पर इस क्वेश्चन में करना था क्या बच्चों, आपको पहले इक्वेशन लिखना है बच्चों, देन व्हेन मास रिलीज सो दैट कि बलून स्टार्ट अप मूविंग विथ एक्सेलरेशन, तो आपका बच्चों ऊपर का बायएंड फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन। इस एस सी वर्मा का क्वेश्चन बच्चों, एस सी वर्मा में क्वेश्चन में हाँ 20 सर, हो देखना, गया। लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर।